Those who follow reactive approach, those who do not believe in PPM, that is planned preventive maintenance, those who like crisis management always, those feel that by not doing these things they will save cost, are always scared of summer seasons. There are some facility managers who do not believe in all these things. Maybe there may be a pressure from the management to save on cost this way, but that way they do not know that that way they end up incurring lot of cost and creating lot of chaotic situations across their branch offices. Friends, this video is important for those who have their presence multi-spread, who are geographically spread across the regions. So this is important for those people. Now these facility managers, there are some elements in their portfolio which they tend to forget, which they tend to ignore rather, before the start of summer seasons. First is AC. Now when you think of AC, if you are aware that you do not have an AMC in place, you do not have a lifted service provider who provide you services across your branches, offices for the AC, then you always have that scare, right? That if tomorrow some AC comes off, then what will happen? The sales people, the operations people, the branch people will start crying, will start raise their voices, will start escalating the issues, right? So the important thing that you should always focus on, to have a proper AMC, comprehensive AMC for all your offices ACs, right? Or not, then please lift out the service providers, do a proper agreement with them, with the proper SOPs mentioned in this, penalty matrix and all, that yes, if tomorrow we lodge a complaint, you have to go and attend the complaint and resolve the problem, right? So if you do not do that, then you have always that scare in your mind, right? Second is the electrical setup. Now when I say electrical setup, you should always try and get your electrical panel serviced before the start of summer seasons, because what happens, over a period of time, all your thimbles, all your wires, connectors, they accumulate some carbon. So it is important to wipe out that carbon from those thimbles, from those connectors, so that there is no spark, right? But you don't do that. Instead, you should always try to get your electrical panel serviced well before the start of summer season. And important thing is that you should always try and get the heat load calculation done. सी मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, ऑक्यूपेंसी बढ़ती है ब्रांच में, आपका हीट लोड बढ़ता है. हीट लोड सिर्फ इक्विपमेंट्स का नहीं होता है, हीट लोड ह्यूमंस का भी होता है, राइट? सो जब आपने ऑफिस सेटअप किया था, लेट्स से 5 साल पहले आपने ऑफिस सेटअप किया था, अब 5 सालों के अंदर आपके इक्विपमेंट भी बड़े होंगे, आपके लोग भी बड़े होंगे, बट आपके इलेक्ट्रिकल सेटअप और एसीज आपके वही हैं, राइट? होगा क्या, इवन इफ योर एसीज आर रनिंग वेल एंड फाइन, बट विद द इंक्रीज्ड हीट लोड देयर माइट बी एन इशू इन योर ब्रांच. सो उसको आपको कोप अप करना है, राइट? तो अपना हीट लोड कैलकुलेशन चेक कराइए और उसके अकॉर्डिंगली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है, जो लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं वो हमेशा डर में जीते हैं कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो, बिकॉज दे नो दैट देयर इज़ अ पास्ट हिस्ट्री टू इट, दैट देयर वर शॉर्ट सर्किट्स इन द ब्रांचेस ड्यू टू नॉन सर्विस ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैनल एंड डीबीज. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है और पहले ही इस पर कार्रवाई करनी है, ठीक है? थर्ड पॉइंट होता है डीजी का. अब डीजी से क्या समझते हैं? डीजी हमारा पावर बैकअप है. अब अगर हमने एएमसी नहीं दी हुई डीजी की, या हमने उसका प्रॉपर ए चेक बी चेक नहीं कराया हुआ बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर सीजन, प्लीज़ उसका ए चेक और बी चेक कराइए. बिकॉज क्या होता है, सर्दियों में ज़्यादा डीजी चलता नहीं है, because there are hardly any power cuts in the winter season. So when you have summer seasons, the
देर आर पावर कट्स, राइट, वो होते रहते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, तो उस केस में यू नीड डीजी। सो अगर आपका डीजी सर्विस नहीं है, आपके पास एएमसी नहीं है डीजी की, देन व्हाट विल हैपन। और डीजी ऐसी चीज़ है कि अगर कल को मेजर फॉल्ट आया डीजी में, इंजन सीज होता है या और कोई प्रॉब्लम होती है और उस समय लाइट नहीं होती है आपकी ब्रांच में, तो आप जानते हैं आपका ब्रांच ऑपरेशन ठप हो जाएगा। यू नो दैट वेरी वेल, राइट। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अपने दिमाग से इस डर को निकालिए और प्लीज़ ये जो डीजी है इसकी आप सर्विसिंग पहले ही करा के रखिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ है, अगर आपकी ब्रांच में यूपीएस है, जाहिर बात होगा, और इन्वर्टर है। सो देर आर सम रूरल ब्रांचेज जहाँ पे इन्वर्टर्स होते हैं, यूपीएस भी होता है बट इन्वर्टर्स होते हैं, डीजी नहीं होता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप, अगर आपको हैबिट नहीं है तो आप प्लीज़ हैबिट डालिए और इसका अपनी बैटरीज़ का, इन्वर्टर है, यूपीएस है, इनफैक्ट डीजी भी है, उसका बीएमटी कराइए। बीएमटी स्टैंड्स फॉर बैटरी मॉनिटरिंग टेस्ट, ठीक है, कि बैटरी की हेल्थ क्या है। आमतौर पे 5 साल की वारंटी की बैटरी लेते हैं आप। अब मान लीजिए आपका इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है, 7 साल हो गए आपकी ब्रांच को, 6 साल हो गए, आपको लगता है कि इन्वर्टर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पता है ये वो एलिमेंट है जिसकी तरफ आप ध्यान भी नहीं देते हो कभी, ठीक है। तो उसका बीएमटी कराइए, ये जानिए कि आपकी बैटरी की हेल्थ क्या है, वो 50% पे काम कर रही है, 60% पे काम कर रही है, उसका पावर बैकअप पूरा है कि नहीं, ये आपको चेक कराना है, ठीक है। ऐसा आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको उतना रिक्वायर्ड अमाउंट में पावर बैकअप नहीं मिल पाएगा, देन देयर विल बी अगेन operational issues. So don't live in that fear. Get rid of this fear by doing all these things. Fifth and last point is your drinking water. See, आपको पता है समर सीजन में ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. Although you have a supply from the reputed agencies or you buy from the local market the drinking water 20 liter bottles for your office staff, but ultimately होता क्या है मान लो आपका ऑफिस जो है या ब्रांच आपकी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में है, उस कॉम्प्लेक्स में गाड़ी जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है वो व्हीकल को, कमर्शियल व्हीकल्स को पार्किंग लॉट में खड़ा कर देती है, ठीक है। वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आपकी ब्रांच है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 5 बॉटल ऑर्डर की पर डे की, या 10 बॉटल ऑर्डर की, तो जो आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं जो वाटर सप्लाई करते हैं, व्हाट दे विल थिंक दैट भाई बड़ी परेशानी है यहाँ तो, बाहर गाड़ी खड़ी करो, तो उसके बाद बोतल को कंधे पे रखो, लेके जाओ, डिलीवर करो, बहुत टाइम लगता है, बहुत धूप होती है। तो क्या करते हैं, वो ऑल्टरनेट डे पे डिलीवरी करते हैं और झूठ बोल देते हैं, आज स्टॉक नहीं आया, आज गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंश्योर दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर सीमलेस वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर योर पीपल इन द ब्रांच। आप स्टॉक में रखिए बॉटल्स, ठीक है, आप एडिशनल 5 बॉटल्स लेके रखिए, सो दैट आपको ये वाले क्राइसिस ना देखने पड़े, ठीक है। या फिर आप यू कैन गो विद आरओ, आप आरओ लगवा सकते हैं, सो दैट फ्री फ्लो आपको वाटर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा पीने के लिए, राइट। तो क्या होता है कि जिसने ये सब प्रॉब्लम्स एनकाउंटर की होती हैं पास्ट में, उसको ये स्कैर होता है, उसको फियर होता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर सीजन कि अगर इनमें से कुछ हुआ तो क्या होगा, देन देयर विल बी इशूज़। अच्छा, कुछ लोग तो क्या है यूज टू हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं इस चीज़ के, ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, देखी जाएगी। एंड वो मैनेजमेंट को क्या बताते हैं, वो मैनेजमेंट को सीबीए करके दिखाते हैं, विच इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि सर देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आई थी, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास एक्स थी, ठीक है, और हमारी वाई थी कॉस्ट रिपेयर की, और हमारी जेड कॉस्ट है एएमसी की। सो अगर हम एएमसी कराते हैं तो हमारे को ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है विज़ावी हम अगर ऑन कॉल बेसिस पे जॉब वर्क कराते हैं तो। बट आप ये भूल जाते हो कि इन सब चीज़ों में आपका बिज़नेस कितना सफ़र करता है। गाइस, बिज़नेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिज़नेस है तो आपकी जॉब है, अगर बिज़नेस नहीं है तो देन यू आर नोबडी, राइट। सो प्लीज़ प्रोवाइड अ हेल्दी एंड सीमलेस वर्किंग एनवायरनमेंट to your people and get rid of this fear. Please have these important points keep in mind so that you do not have that hassle of cutting a sorry figure in front of your business, right? I hope you liked my content. Please mention if you like it,
subscribe my channel, like the video and share it to your friends. Thank you very much.